सोच के बहुत आते हैं हम बोलने के लिए, लेकिन वाकई में दिखता है कि स्टेज फियर अभी भी आपको देखने के बाद नहीं गया है। जनरली हम ये सोच के आते हैं कि बहुत कुछ बोलना है आज, अपना अपना हम प्रिपेयर अपने हिसाब से करके आते हैं, लेकिन जब सामने दिखते हैं तो कहीं ना कहीं फ्रंट रो में बॉस दिखते हैं, तो क्या बोला जाए समझ में आता नहीं है हमें। और जहाँ तक मैं जानता हूँ ट्राई कलर को, ट्राई कलर वन वे है। जैसे हम आर्मी में जाते हैं तो वन वे होता है, उसी तरह से ट्राई कलर वन वे होता है। जो एक बार इसके अंदर एंट्री होता है फिर उसका असंभव है कि वो बाहर जा सके। एग्जाम्पल अगर हम देखना चाहें तो नीरज साहब को देख सकते हैं, वो क्या क्या सोच के आए थे, लेकिन आखिर में आके ट्राई कलर में ही गिरे सर। अगर वो चाह के भी जाना चाहे तो नहीं जा सकते। लेकिन मैं एक चीज़ बोलना चाह रहा हूँ, लेकिन ओवरऑल जितने भी कंट्रीज है वर्ल्ड वाइड, हर जगह हमें पहुँचना है। और सर वाकई में बहुत कुछ था सर, बोल दिया। क्या होता है कि इंडिपेंडेंस डे का तो सर वी आर वेरी मच लकी टू एसोसिएट विद ट्राइकलर प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड। और बहुत अच्छा लगता है जब हमारा बॉस और उनके जो फोकस जो वे बोलते हैं उस पर चलने के जो भी रहता है बहुत अच्छा दिखता है सर। थैंक यू। एक दिन बहुत अच्छा बोल के बताऊंगा। Good afternoon everybody. Happy 12th birthday Tricolor to all. నేను బర్త్డే ఎందుకన్నానంటే ఇండియాలో అందరు బర్త్డే జరుపుకుంటారు, అప్పుడు నాది అని చెప్పుకుంటారు. ఈరోజు మనది బర్త్డే, అంటే ప్రతి ఒక్కరి బర్త్డే. సో హ్యాపీ బర్త్డే మీన్స్ అదర్ ఆల్సో. ట్రైకలర్ బర్త్డే ఆయన బర్త్డే కాబట్టి ఎప్పుడు కూడా రెండు బర్త్డే కలుపుతో జరుపుకుంటాం మనం. తర్వాత ఈరోజు మన 2010లో స్టార్ట్ అయిన మన పరంపర లాస్కా బస్సు అనే పరంపర ఈరోజు 2022 ట్రెజరెంట్తో మనం ముందుకెళ్తున్నాం. ఇంకా అలాగే 5 బ్రాంచులతో మనం ఇండియాలో స్టార్ట్ అయింది, సముద్రం దాటి కూడా మనం దుబాయ్లో స్టార్ట్ చేసాం. సో ఈజ్ గ్రేట్ టు అవర్ మేనేజ్మెంట్. అండ్ ఇందులో మనం ప్రతిదీ సక్సెస్ అవుతున్నాం. చందన్ సార్ విజన్ కానీ రంజన్ సార్ విజన్ కానీ సక్సెస్ అవుతున్నామంటే దానికి కారణం మీరంతా. మీరు లేకుంటే మేము లేవండి. మేము ముందుకెళ్తున్నాం కాదు, మీరు మమ్మల్ని ముందుకు తీసుకెళ్తున్నారు. సో మేము చాలా హ్యాపీ ఆ విషయం. తర్వాత నరేంద్ర అన్న చాలా హ్యాపీ, చాలా సపోర్ట్ ఇచ్చారు మాకు. ఇంకా మీ సపోర్ట్ అలాగే కొనసాగాలని కోరుకుంటున్నాము. ఎందుకంటే ముందు వెంచర్స్ మేము చాలా చేయాలి. సో మీరు వాళ్ళే చేశారు, నేను కాలేదు, వాళ్ళు చేశారు. సో అందరూ కూడా నేను చెప్తున్నాను, ట్రైకలర్ ఎవరితో అనుబంధం ఉంటుందో, అంటే ఏదో టెంపరీ కాదు పర్మనెంట్ అనుబంధం ఉంటుందో వాళ్ళ జీవితాలు చాలా చేంజ్ అవుతాయి. 2010లో స్టార్ట్ అయిన జస్ట్ 3-5 నేను చూశాను. అప్పుడు 2012 కూడా 5-6 ఉండే. ఈరోజు ఎన్నో వందల మంది ఆపరేషన్ టీము, ఎన్నో వేల మంది మార్కెటింగ్ టీము, ఎన్నో వేల మంది ఆయన చేతిలో బతుకున్నారంటే ఈజ్ అ గ్రేట్. ఇది అందరితో పాసిబుల్ కాదండి, ఎంతో పట్టుదల దీక్ష ఎంతో ఉంటేనే సాధ్యమవుతుంది. ఈరోజు ఆయన ఒక్కటే మనకు నీరజ్ గారు అన్నట్టు ఆఫీస్ మట్టుకు మాత్రం చాలా ప్రొఫెషనలిజం. ఈవెన్ ఐడి లేకపోతే కూడా అన్న ఐడి ఎక్కడ అంటే అది చూపెట్టుకోతుంది నాకు అర్థం కాదు. అది మన డిసిప్లిన్ కారణం అండి, మన డిసిప్లిన్ కారణము. తర్వాత చిన్న చెప్తాను, ఈరోజు మాకు ఈ మధ్య పెంచ్ మీటింగ్ జరిగింది, క్వార్టర్ మీటింగ్. మీరు ఆ పెట్టుకోలేక చెప్పేశారనమాట, ఆ పెట్టుకోలేక చెప్పొద్దానంటే చెప్పేశారు. అండ్ మీకు కూడా 12 years బర్త్డే సార్. 12 years ఈ కంపెనీలో ఉన్నారు. దట్స్ గ్రేట్. ఆయన చెప్పొద్దు అంటారు, అవును, ఇలా చెప్పమంటారు. అవును, మరి అందరినీ బ్యాలెన్స్ చేస్తే మేము ఇప్పుడు ఉంటాం కదా. ఖచ్చితంగా. ఎందుకంటే నేను వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేసి కొన్ని ఫొటోస్ చూసినప్పుడు మీరే కనిపించారు, ఇక్కడికి వచ్చాక వేరేగా ఉన్నారు, అందులో వేరేగా ఉన్నారు. వీళ్ళేమో ప్రతిదీ కొత్త
నిబంధనలు తీసుకొస్తాను అన్న ఇది ఎవరికి చెప్పొద్దంట నాకేమో మనం మనం బతికేదే మనం అంతా వాళ్ళతో ఖచ్చితంగా they are the main pillars of this tricolor property. నేనేం చేస్తానంటే సగం చెప్పి సగం చెప్పాను. అందరూ ముందుకెళ్ళాలి, అందరం బాగుపడాలి. ఇప్పుడు నేను చిన్నప్పుడు ఆలోచించేవాళ్ళు మా నాన్న బాగా సంపాదిస్తే నాకు డబ్బు చెప్తున్నాను, కానీ ఇప్పుడు నా కంపెనీ బాగుపడితే నేను బాగుపడతాను. ఆలోచిస్తేనే బయట వస్తాను. Thank you so much. That was really great. And 12 years in the same company shows the quality of the company. Right? So can you all give a round of applause for this fantastic, fascinating company? And I'm really happy to be the anchor today, and I'm really very proud to be anchor today. And next speech is by none other than the sweet sisters of our MD and directors is Mrs. Ekta Jha Garu, and she's the Manager Media Partnership. To please invite her onto the stage with a round of applause. Andaru gattiga chappatlado. Happy birthday Tricolor, happy birthday Kittu. First of all, on this Foundation Day, I would like to thank the founders Chandan Kumar Jha, Ranjan Kumar Jha and Digambar Jha ji, my dad and my brothers, for giving me this opportunity to celebrate this birthday. So this is the 12th Foundation Day. Let me begin with the past. How did we start? We start with a company where we did a printout. We have laid 5-6 staffs, and now present. Now we have many projects across the country, worldwide. Now what is the future? The future will be very bright. Now everything will be in automations, and I am the digital media person. I will make sure that now in one click customer can claim their projects, they can pay online, and they can have their assets built. Thank you so much for the opportunity. Again, happy birthday Tricolor. Thank you. Thank you so much. That was wonderful speech, ma'am. All right, and थैंक यू नेहा. सॉरी मैं बिहार होके आई हूँ तो थोड़ा कोल्ड है मुझे. ओमिक्रॉन नहीं है, कोल्ड है. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू. एक्चुअली मैं भी बहुत नर्वस फील करती हूँ जब मैं बोलने के लिए यहाँ पे आती हूँ. सबको डाउट होगा कि भाभी क्यों नर्वस फील करती है. एक्चुअली मैं इनएक्टिव मेंबर हूँ शायद ट्राइकलर की. मैं उनके सामने बोल रही हूँ जो बहुत ज़्यादा एक्टिव है ट्राइकलर में, तो सीरियसली ये मेरी नर्वसनेस का रीज़न है. जब हम आ रहे थे अपने घर से अभी फंक्शन के लिए, तो मैंने इनसे पूछा कि मेरा भी स्पीच है क्या, तो उन्होंने बोला ऑफकोर्स तुम्हारा भी स्पीच है. मैं बोली क्या बोलूँगी, समझ नहीं आता वहाँ पे, किसको बताऊँ. ऑलरेडी जो फील्ड में दिन भर वहाँ रह के धूप में गर्मी में जो कस्टमर को, मुझे लगता है कि आप 20 कस्टमर्स को लेके जाते हो तो शायद एक कस्टमर कन्विंस होता होगा कि हाँ ठीक है हम यहाँ इन्वेस्ट करेंगे. ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा मेहनत है आपका. उनके सामने मैं क्या बोलूँ जो घर में बैठ के बस इनसे सुनती रहती हूँ कि आज ये हो गया, आज ये हो गया. तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है. फिर मैंने इनसे पूछा क्या बोलना है, तो ये बोले कि कुछ मत बोलना, स्टेज पे जाना और बोलना कि मेरे सारे देवरों हैप्पी फाउंडेशन. that was beautiful. सारे देवरों और सारे नंदो इसलिए क्योंकि प्लीज आप लोग नंदा दे रहो, वो ज्यादा अच्छा है. हमारी जितनी भी एक्टिव लेडी है, हमारी मैडम, बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ मैं उनकी. नंदिनी, उसकी मेहनत की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ. 12th ईयर से हम लोग रेगुलर फाइट कर रहे हैं और हम इस मुकाम पे हैं कि आज हमारा अब्रॉड में भी अपना प्रोजेक्ट है. तो एक्चुअली ये सीरियसली बहुत प्राउड की बात है. और मुझे लगता है कि लाइफ में कभी बस नहीं होता है. होता है क्या किसी की लाइफ में बस? एक लेडी जब सुबह उठती है तो सोचती है कि ठीक है जल्दी ब्रेकफास्ट रेडी कर देती हूँ, बस उसके बाद थोड़ी देर शांति से बैठूंगी. पर वो बैठती है क्या? रात का डिनर करा देती हूँ बस घर में सबको, अब शांति से सोऊंगी क्या? वो सोती है. लेडी समझ सकती है इस बात को. ये तो पर्सनल लाइफ की बात है, लेकिन वाकई में लाइफ में कभी बस नहीं होता है. हम पैदा होते हैं, पैदा होने के बाद लगता है कि 10th क्वालिफाई करेंगे, फिर थोड़ा चैनियत आएगी. 10th हो जाता है, इंटर करेंगे हो जाएगा, ग्रेजुएशन करेंगे हो जाएगा, जॉब मिलेगी हो जाएगा. पर क्या उसके बाद भी होता है? किसी के लाइफ में है क्या बस? बस नहीं, और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जब बस हो जाता है तो वहाँ से आगे बढ़ना रुक जाता है. और ये फैक्ट है.
इस बस को कभी मत होने दीजिए, ये आप लोग से गुजारिश है मेरी। बात स्ट्रगल की है तो 12th ईयर से हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आने हैं। जब दुबई प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था तो आपके चंदन सर से मेरी बात हुई थी कि अब नेक्स्ट क्या प्लान है, तो उन्होंने बोला कि इंडिया प्रोजेक्ट को किसी को फेस बनाना है, मुझे मे बी वो फेस आप में से कोई होगा इन फ्यूचर। तो इन्होंने मुझे बोला कि किसी को फेस बनाना है और ही विल हैंडल द इंडियन प्रोजेक्ट्स एंड आई विल सी अब्रॉड। तो मैंने बोला और क्या प्लान है, तो देन ही से कि नहीं अब दुबई के बाद लंदन, फिर कनाडा, फिर यूएस मेरा फाइनल है। मैं बोली उसके बाद स्टॉप करोगे, तो बोले कुछ काम तो अथर्व आयु के लिए भी छोड़ देता हूँ। तो उतने 12th ईयर के स्ट्रगल के बाद आप लोग से ज़्यादा कौन समझ सकता है, लाइफ में स्ट्रगल बहुत ज़रूरी है। वो बॉस है या वो एक छोटा एम्प्लॉई है, एक हाउसकीपिंग स्टाफ है, वो ये सोचता है कि शायद बॉस बहुत आराम से रहते हैं, लेकिन एक्चुअली मैं छोटी सी बात बताती हूँ, आराम से तो कोई नहीं रहता है। अपने फॉरेस्ट में किंग होते हैं, लायन, मालूम है ना, लायन को क्या है, वो किंग है जंगल का, उसको सब कुछ बहुत इजीली मिल सकता है, बट आपको मालूम है कि उसको भी अपना शिकार ढूंढने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, दौड़ना पड़ता है, प्लान बनाना पड़ता है। किंग है पर उसको मेहनत करनी है अपने शिकार के लिए। और एक हिरन भी जब तक दौड़ता है तब तक वो बच जाता है, जब वो समझ जाता है कि अब मैं नहीं बचूंगा, वो रुक जाता है और थक जाता है, तो वो शिकार बन जाता है। तो इसलिए रुकना और थकना नहीं कि हम किसी का शिकार बने, हमें दौड़ते जाना है, दौड़ते जाना है। और लाइफ में डार्कनेस आएगी तो डार्कनेस भी किस लिए होती है, डार्कनेस अगर आएगी तो हम समझेंगे कि ब्राइटनेस की एक्चुअली क्या इंपॉर्टेंस है लाइफ में। तो डार्कनेस अगर आएगी, लास्ट 1 ईयर बिफोर हमारी लाइफ में भी आया, आपके चंद्र सर के पर्सनल लाइफ में भी आया, आप मुझे लगता है आप सब जानते हैं इस बात को। फिर ऐसा लगा कि जैसे सब कुछ खत्म हो गया, अब कुछ नहीं होगा। बहुत ट्राई किया हमने भी मोटिवेट करने का, बट चंदन सर ने अपने विल पावर से आज, और फैमिली का सपोर्ट, माँ पापा का आशीर्वाद, और ऑब्वियसली जीजू, उस टाइम में जीजू ने तो ऐसा लगा ही नहीं कि ही इज द ईडी ऑफ द कंपनी। ये डल हो गए और जीजू ने पूरा, मतलब सॉरी फॉर जीजू, ईडी सर ने हमारे पूरे कंपनी को बहुत अच्छे से, उस टाइम में इनके डल होने के टाइम में इन्होंने बहुत अच्छे से मेंटेन किया। वो सारी चीज़ें आप लोगों को करनी है, इन फ्यूचर कंपनी को बहुत आगे लेके जाना है, बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है, थकना नहीं है, बस नहीं बोलना है। लंदन जाना है, कनाडा जाना है, यूएस जाना है। ट्राई कलर रॉक। Yes, Tricolor rocks. थैंक यू। So that was really wonderful. आज 12th ईयर कंप्लीट हो गया हमारी कंपनी का। बहुत लंबा लगता है, 12 साल बोलने में, 12 साल हो गए, बट सोचे तो बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं लगता है 12 साल, क्योंकि फिर हमें क्या मिलने वाला है, हम अब और क्या करने वाले हैं। तो इसीलिए इस हिसाब से मुझे कुछ 12 साल बड़ा नहीं लग रहा है। आने वाली बहुत सारी चीज़ें ऐसे देखनी है हमें अभी। दूसरा, सर ईडी सर ने कहा जैसा कि आज इंजॉयमेंट का दिन है, मैं भी उसी मूड में हूँ। सर आपकी इजाज़त हो तो एक्चुअली क्या है, इजाज़त इसलिए मांग रही हूँ, मैं इनके साथ ही रहती हूँ घर पे भी हमेशा, बट फियर मुझे भी उनसे उतना ही है। सामने बोलना बोले तो बहुत डर लगता है, बाकी सब कुछ ठीक है। तो सर ओके, तो मैं थोड़ा जॉली होना चाहूँगी आप लोगों के साथ में। सर से कुछ क्वेश्चन पूछना चाहूँगी। जानना है, मैं कभी भी पूछ सकती थी इनसे ये बात, घर पे भी पूछ सकती थी, बट यहाँ मैं इसलिए पूछ रही हूँ, मुझे लगता है यहाँ बहुत लोग ये चीज़ जानना चाहते होंगे, कितनी कम एज में इतना सोचते कैसे। मुझे बहुत प्राउड फील होता है सर के बारे में सोच के कि मेरे देवर हैं। और बाकी तो सक्सेस देखिए क्या है कि फिर मैंने गौर करना शुरू किया इनके ऊपर, इनकी एक्टिविटीज़ को, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो झोल है इनके अंदर। फिर सोचा कि नहीं, इनको नशा ही लगा है मेहनत करने का, नशा ही इन्हें लगा है मेहनत करने का। सक्सेस तो आनी ही थी, तो इसीलिए सक्सेस इनकी कदम चूमती है। हमें भी इसी नशे को करना है, बाकी चाय कॉफ़ी सब भूल जाइए। तो सोचती हूँ कि यही चीज़ मैं भी करूँ, मैं आइडियल में मानती हूँ इन्हीं को, क्योंकि बिजनेस के कदम में रखा है मैंने, कदम मैंने उस ज़िंदगी में, बट कैसे बढ़ना है मैं अपने, मेरे साथ काम करने वाले किसी को भी कहीं और का एग्जाम्पल देती ही नहीं हूँ। बस बोलती हूँ कुछ करना है तो ट्राई कलर को देखो, उसको देखो, उसकी तरह ही आगे बढ़ना है, बाकी सब कुछ भूल जाओ। तो मुझे यहाँ से ही मिलता है कि मैं आगे बढ़ने की सोचूं। और क्या बोला था मैंने भूल गई एक्चुअली।
तो वही कामयाबी जो है उसका एक बहुत बड़ी खासियत है कामयाबी की, कि वो मेहनत करने वालों पे फिदा हो जाती है। तो हमें भी मेहनत करते रहना है, मेहनत करते रहना है। किसी भी चीज़ को सक्सेस बनाने के लिए हमारे में ऐसा बोलते हैं कि मार और संभाल दोनों बहुत ज़रूरी है। तो मुझे वो भी चीज़ यही देखने के लिए मिलती है आप दोनों सर में, या एमडी सर और ईडी सर में, कि मार संभाल जब है तो हर चीज़ हो जानी है। एक अगर कोई स्ट्रिक्ट है तो दूसरा लूज है, दूसरा अगर ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जा रहा है तो दूसरे को उसको संभालना पड़ता है। वो चीज़ें भी हमें यहीं देखने के लिए मिलती हैं। और बाकी सब तो आप बेहतर जानते हैं, आप सब लोगों के सपोर्ट से ही ये कंपनी आज यहाँ तक 12 साल में पहुँची है। और एक और छोटी सी बात कहना चाहूँगी, सपने देखिए हम सब देखते हैं, मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि सपने हम देखते हैं, लेकिन क्या होता है नॉर्मली उसको हम एक दिन बाद डिस्कस करते हैं, किसी के सामने बोलते हैं, 2 दिन बाद भूल जाते हैं। पर ट्राइकलर में मैंने वो देखा है कि अगर हमने सपने देखे हैं तो हमें उसे पूरा करना है। ट्राइकलर आके इस स्टेज पे उस चीज़ को बोलता है और फिर उसके पीछे पड़ जाता है कि हमें किसी भी तरह इस सपने को पूरा करना है, और इसीलिए हम ईयर बाय ईयर आगे बढ़ते जा रहे हैं। दूसरा क्या कि क्या हुआ, कामयाबी बोलते हैं जो, कर्म करो, एक कहावत आप लोगों ने भी सुनी हुई भी, कर्म करो फल की चिंता मत करो, फल तो मार्केट से भी ले आएंगे, है कि नहीं? तो हमें अपना कर्म करते जाना है। लास्ट में बस एक चीज़ और बोलूँगी कि अगर गालिबाज होते, गालिब अगर आज जिंदा होते तो हमारे बारे में नहीं, जमाने के बारे में नहीं, ट्राइकलर के बारे में लिखते। थैंक यू, थैंक यू। आज सभी ट्राइकलर फैमिली ग्रुप को मैं अपने तरफ से कांग्रेचुलेसन बधाई देता हूँ कि आप लोग 12वां साल मना रहे हैं। 12 साल का ये पड़ाव बहुत ही संघर्षपूर्ण रहा, और हम लोग इस मुकाम पर जो अभी पहुँचे हैं, जो जी अशोक ने दिखलाया यहाँ पर्दा पर देखे सर। और आज अथल का भी बर्थडे है, तो आप लोगों का मैं आशीर्वाद चाहता हूँ वो बच्चे को देने। सब हर एक अभिभावक जो है अपना बेटा को, बेटी को डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, APS बनाना चाहता है। अगर हमारे बच्चे इतना ट्राइकलर फैमिली के जितने भी बच्चे हैं, आज थर्ड आरम है हमारा, कुल्लू गिनी है, और इतने जितना फैमिली के बच्चे जितने भी हैं ट्राइकलर ग्रुप ऑफ कंपनी के बच्चे, अगर हमारा बच्चे अगर IAS IPS हो भी जाएगा तो मैं सर्टिफिकेट देख लूँगा और कहूँगा बेटा तू ट्राइकलर का कारवा के ले। तो ट्राइकलर हम लोगों को प्लेटफॉर्म है, सभी फीचर जितने भी फैमिली के बच्चे हैं। मैं आज तो 12 साल है, अभी सिल्वर जुबली भी नहीं हुआ है, उसका 13 साल बाकी है। 13 साल जब होगा तब सिल्वर जुबली होगा। मैं जीवित रहूं या नहीं रहूं, लेकिन ये कारवा चलता रहे। हर एक फीचर का बच्चा सर उसको जीवित रखेगा, प्लेटफॉर्म को आगे ले जाएगा। और आप लोगों से यही कहूँगा, जिसको IAS IPS हो जाएगा होने दो, जो नहीं होगा ये प्लेटफॉर्म है। ये आज दुबई तक गया है इंडिया से, और कई कंट्री में जाएगा। और बच्चे सब जो है, मैं जीवित नहीं रहूँगा तो कोई बात नहीं है, ये सिल्वर जुबली देखूँ या गोल्डन जुबली देखूँ या डायमंड जुबली, 12 साल हुआ, ये बहुत कारवा बाकी। और आप लोगों का हौसला से, इतना परिवार का हौसला से मैं आज यहाँ पहुँचा और भी पहुँचूँगा। ये फैमिली का को देख करके हमें गर्व हो रहा है। और आप लोग अनुशासन डिसिप्लिन से चलिए, बहुत कुछ होना बाकी है। अभी 12 साल में इतना आए हैं, बहुत कुछ बाकी है। तो आप लोग धैर्य, पैसेंस से और डिसिप्लिन मेंटेन कीजिए ट्राइकलर कंपनी का, और आगे बढ़िए। यही हमारा सबको, जो बड़े हैं उनको मैं प्रणाम करता हूँ, और छोटे सबको, भाई बहन और बच्चे, लड़का लड़की जो भी है, सबको मैं आशीर्वाद देता हूँ। विराम देता हूँ। कहने के लिए तो बहुत है, और भी बहुत कहने वाले हैं।
So that was wonderful and stunning speech. Can you all give a round of applause to him? On the stage for his wonderful speech. 12वां फाउंडेशन डे का आप लोग को सभी को ढेर सारा बधाई और प्यार। आप लोग का प्यार देने के लिए कि 12 साल आज हम लोग मना रहे हैं। और पापा आप जो बोल रहे हैं सिल्वर जुबली क्या, आप गोल्डन जुबली भी देखोगे, क्योंकि अपने पास बहुत का आशीर्वाद मिल रहा है और आप गोल्डन जुबली भी देखोगे। इसलिए ये मत बोलिए कभी कि हम सिल्वर जुबली भी देखेंगे कि नहीं, गोल्डन जुबली भी आप जरूर देखोगे। मैं जर्नी के बारे में बोलूँगा कि जब ये कंपनी 2010 में खोला था, तो इससे पहले हम लोग जब बचपन में ही हम लोग खेलते थे ना, तो कभी भी ज़्यादातर ऑफिस टाइप का ही खेलते थे। और ये मेरा बहुत बड़ा ड्रीम था ये सब कि कभी हमारा अपना प्लेस है जहाँ मेरा मदर प्लेस है, वहाँ पे भी मेरा एक ऑफिस रहे, जहाँ मेरा कर्मभूमि हैदराबाद है तो यहाँ रहे। तो ऐसे बहुत प्लानिंग चल रहा था कि दिल्ली में रहे, मुंबई में रहे। तो ये धीरे धीरे एक एक साल जब 2010 से हम लोग ने खोला तो एक एक स्टेट को चढ़ते हुए हम लोग स्टार्ट किए। और आज मुंबई में हो गया, बेंगलोर में हो गया, क्या बोलते हैं, पटना में हो गया, दरभंगा में हो गया, और आज हम दुबई तक गए। तो ये ड्रीम पूरा होता है, जो सपना देखता है उसी का हकीकत होता है। तो आप लोग का भी है कि सपने बड़े देखिए, कभी भी बड़े सपना जब भी देखिएगा, अगर आप जब सोचिएगा कि मेरे को डीएसपी, आईजी, आईपीएस बनना है, तभी आप उस लेवल तक जा सकते हो। अगर आप पहले ही सोच लोगे कि मेरे को कांस्टेबल बनना है, अगर कांस्टेबल भी अगर कोई हो तो खराब नहीं है, इसको आप अदर वे नहीं लीजिएगा। लेकिन मेरा बोला है कोई भी चाह बड़ा रखता है, तो कांस्टेबल जब रखता है तो वो वॉचमैन तक ही बन पाता है। इसलिए बड़ा एम रखना चाहिए, तभी पूरा हो सकता है। तो ये जर्नी जो है हम लोग 2010 में स्टार्ट किया और आज 2022 में लगभग हमारे पास 26-27 वेंचर है। तो इसमें सभी का योगदान है, तो बहुत अच्छा से चल रहा है और भी हम लोग आगे स्टार्ट करेंगे और मैं उसके बारे में भी बताऊंगा। पहले मैं दुबई के बारे में बता देता हूं जरा। एक छोटा सा हमारा जो दुबई में हमारा वहाँ पे एग्रीमेंट हुआ था उसका कुछ फोटोस है, और मैं उस पर मेरे को एक गाना बहुत अच्छा याद आ गया। वो गाना का मैं वीडियो बनाया हूँ, तो आप लोग को दिखाना चाहूँगा। स्टार्ट करो भाई। ये हमारा दुबई का फर्स्ट कस्टमर है, ये जो देख रहे हैं। पूजा भी हो गया है और वहाँ पे 16 को जो वहाँ का शेख है उनका नाम है थॉम्स, तो वो जो है वहाँ पे रिबन काटेंगे और अपना ऑफिस जो है स्टार्ट हो जाएगा। और आने वाले समय में हमको लगता है कि अप्रैल तक आपको वहाँ पे वेंचर भी स्टार्ट हो जाएगा। उस जगह का नाम है रसल खामा, और एक दुबई में भी एक प्लेस है, वहाँ पे 2 जगह स्टार्ट हो जाएगा हमारा वेंचर। Can you all give a beautiful round of applause for this wonderful video? तो ये झलक था जो वहाँ पे एग्रीमेंट हुआ था। और ये टाइप जो हुआ है, जैसे यहाँ पे जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट का रूल है, वहाँ पे किंग रूल रहता है दुबई में। और ये हम लोग को डायरेक्ट
वहाँ के जो किंग है रैसल खामा के, उनसे ये टाई अप हुआ है। तो और जो थॉमस है वहाँ का, वो भी शेख है, वो भी रॉयल फैमिली से जुड़ते हैं। तो हम लोग भी एक रॉयल फैमिली से जुड़ चुके हैं। तो इसका सुविधा जो है आपको आने वाले समय में देखने को मिलेगा। ये जो वीज़ा के लिए आपको इतने परेशानी होता है, अब हम लोग को एक बार जो अगर बोलेंगे हमको दुबई जाना है तो तुरंत हमको वीज़ा लेने का जरूरत नहीं पड़ेगा। हमको कार्ड रहेगा, वही एयरपोर्ट पे दिखाएंगे और इसके थ्रू से हम लोग 3000 आदमी को वहाँ पे नौकरी देने जा रहे हैं। ये दुबई के लिए हमारे लिए सबसे बड़ी बात है कि पैसे कमाने तो सब जाता है, कोई अपने आदमी को नौकरी मिल जाए तो ये बड़ी बात है। तो 3000 ऑलरेडी हमारे अभी 2-3 आदमी गए हैं, हमारे टीम गए हैं, ऑफिस बन के तैयार होगा और 16 तारीख को जो ओपनिंग होगा वो वहाँ के जो किंग्स है उनके साथ, और चंदन भी जा रहा है वहाँ पे 15 तारीख को। तो आप लोग, और वहाँ पे दुबई में एक चीज़ बहुत खास है कि आप लोग कितने भी कमा सकते हो वहाँ पे, क्योंकि हर एक कंट्री, कोई भी कंट्री, यहाँ क्या है अगर दूसरे कंट्री वाले इन्वेस्ट करेंगे तो उनको प्रॉपर्टी लेने में थोड़ा दिक्कत है, लेकिन दुबई में कोई सा भी कोने के, चाहे पाकिस्तान का रहने दीजिए, चाइना का रहने दीजिए, अमेरिका का, कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है। तो वहाँ पे किसी को वीज़ा का, पासपोर्ट का जरूरत नहीं रहता है, कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है अगर इन्वेस्ट पर्पज से। तो बहुत ही अच्छा है दुबई के बारे में। तो और बाकी दुबई के बारे में सब बताया, तो उतना बताना मैं नहीं चाहूँगा। और हमारा एक सॉफ्टवेयर है जो मरामी, जो फर्स्ट न्यू ईयर के दिन हम लोग लॉन्च किए थे, ऑलमोस्ट वो बनने को रेडी हो गया है और ज़्यादा से ज़्यादा हमको लगता है 15 से 20 दिन में वो बन के रेडी हो जाएगा। उस पर मरामी के टीम जो है ज़्यादा से ज़्यादा वर्क कर रहा है। और वो मरामी सॉफ्टवेयर ऐसा है कि अभी आपको पता नहीं रहता है कि मेरा कमीशन कितना है, आपका कितना साइड एक्सपेंस है। उसमें आपको हर एक तरह का सुविधा दिया गया है कि आप अपना आईडी डालेंगे और आपको सब इंफॉर्मेशन आ जाएगा कि हमारा कितना बैलेंस है, कितना हमने ले लिया, कितना कस्टमर को, सब कुछ, मतलब उसमें एक 1 to Z पूरा जो भी है A to Z सब आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये आपको और 20 दिन के अंदर में इस पे काम चल रहा है और हमारे पूरे टीम लगे हुए हैं और आपको 15 के 20 दिन के अंदर में ये पूरा चालू हो जाएगा सॉफ्टवेयर। उसके बाद हम लोग बिजनेस के साथ साथ सामाजिक काम पे भी ध्यान ज़्यादा देते हैं। अभी मैं आपको बता दूं, हमारे बेंगलोर ब्रांच है, आज के दिन एक अनाथ आश्रम में गया, वहाँ पे पूरे खाना का, फिर उसके बाद उन लोग के लिए कपड़े वगैरह जो भी है वहाँ पे डोनेट किया गया। तो ये एक पहल हुआ। उसके बाद मैं बता दूं पटना में जो है आज विकलांग बच्चों को, जिसको कान में सुनने से दिक्कत है, उनके लिए कान का मशीन जो होता है वो डोनेट कर रहे हैं हम लोग। ये कार्यक्रम आज पटना में चल रहा है। उसके बाद अगर आप हैदराबाद में आइएगा तो हैदराबाद में हमने एक अनाथ आश्रम को एडॉप्ट किया है। उसमें जितने भी बच्चे हैं, कल हमारे हमारे आदमी लोग गए थे, वहाँ पे जो सीन देख के इतना, मतलब वो लोग जब हम लोग को बताए तो हम लोग को रोना आ गया। किसी के माँ बाप कैंसर से मर गया और उसके बच्चे अनाथ है, और ऐसे ऐसे बच्चे हैं, किसी के क्या बोलते हैं फादर मर गया और उसके मदर जो है भाग के दूसरे शादी कर लिया और बच्चे को छोड़ दिया। तो ऐसे ऐसे भी ये सब देख के बहुत उन लोग को, हमारे आदमी को रोना आ गया। और उन्होंने जब बताया तो हमें भी दुख हुआ। तो उनके लिए हम लोग ने अभी टीवी, वॉशिंग मशीन, जितने भी उनके सुविधा है। और वो बच्चे लोग को जब पूछा गया कि आप बड़े होके क्या बनना चाहते, तो किसी ने डॉक्टर, किसी ने साइंटिस्ट, ऐसे ऐसे जवाब दिया। तो हम लोग सोचे नहीं, इनके लिए ज़रूर कुछ हमें करना चाहिए। और हम लोग ने उनके लिए आज पूरा सुविधा, चेक वगैरह जो भी है उनको देंगे और वहाँ पे हम लोग काम कर रहे हैं। उसके अलावा हम लोग ने फ्लड्स आया था, अभी हैदराबाद में आया था, उसमें बांटने का काम किया। अभी केरला में आया था, वहाँ पे हमने डोनेट किया है। उसके बाद बिहार में हर एक साल आता है, कुछ ना कुछ हमारा योगदान हर एक चीज़ में रहता है, चाहे सोशल का कुछ भी, मतलब सामाजिक काम रहता है। बिहारी समाज है, अग्रवाल समाज है, ऐसे ऐसे समाज में बहुत सारे फंक्शन वगैरह होता है, उसका स्पॉन्सर भी हम लोग करते हैं और कुछ ना कुछ डोनेट करते हैं। तो ऐसे हम लोग का काम रहता है कि समाज में भी कुछ अच्छे काम हो। और मैं आप लोग को, जब ये फाइन वगैरह लिया जाता है
आप लोग कोई अभी बोल रहा था आईडी कार्ड नहीं पहनते हैं तो फाइन ले जाता है। तो ये सब जितने भी आपके ही अच्छे काम के लिए वो फाइन वगैरह जो है मैं उसमें ऐड कर देता हूँ, और अपने कंपनी के तरफ से भी फंड जाता है और दोनों फंड मिलके वहाँ पे कुछ अच्छे काम होता है। तो आपका फाइन का आप थोड़ा भी ये रोना नहीं हुई है कि मेरा फाइन का ऐसा, ये अच्छे काम में ही लग रहा है। तो मैं तो बोलता ऐसे आईडी कार्ड भूलिए और फाइन दे के और भी अच्छे बच्चे को पढ़ाइए। तो ये बहुत अच्छी काम है। उसके अलावा आज हमारा नया वेंचर लॉन्च हुआ 2022 में। हमने स्टार्टिंग में ही हमारा एक बहुत अच्छा रहता है कि हम लोग एक कम से कम एक तो वेंचर लॉन्च करके रहता है साल में, लेकिन इस बार स्टार्टिंग में ही लॉन्च हो गया। अभी फरवरी महीने आया, उसमें एक संगारेड्डी में लॉन्च हुआ है। अभी आने वाले समय में और भी वेंचर लॉन्च होने वाले हैं। अभी बात कर रहा था लंदन का, वाकई में हम लोग लंदन सही में जा रहे हैं और बहुत जल्दी आपको सुनने को मिलेगा कि लंदन में भी हमारा ऑफिस है। वैसे हमारा साउथ अफ्रीका में भी एक प्रपोजल आया है, वहाँ से एक रसिया के लिए आया है। तो ऐसे जगह पे भी हम लोग बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा और आप लोग आनंद उठाएंगे। और एक चीज़, आज के जो हमारे गेस्ट हैं मैं उनको भी धन्यवाद करूंगा कि वो हमारे प्रोग्राम में फर्स्ट नेहा जी को, और उसके बाद इंडियन आइडल के 5th विजेता हैं जो श्री राम। और वो बड़ी बात क्या है, वो अपने मूवी भी जो हम लोग जो रिलीज किया था ई मूवी जिसका हीरो नीरज श्याम है, उस गाने में भी श्री राम ने गाना गाया है। और हमारे एक जो कॉमेडियन भाई साहब हैं जो यूपी से आके हैदराबाद में अपना, आज कोई नहीं बोल सकता कि वो यूपी के आदमी हैं। वो आप लोग भली भांति जानते होंगे, नवाब साहब जो द अंग्रेज मूवी यहाँ का कॉमेडी मूवी बना था। तो वो भी हमारे पास अभी जल्द आएंगे। ये पूरे स्पीच खत्म होने के बाद उनका परफॉर्मेंस होगा, आप लोग अच्छा एंजॉय कीजिएगा। आज का फाउंडेशन डे मतलब ऐसा एंजॉय कीजिए कि घर में जब अपने बच्चे को आप लोग बर्थडे मनाते हैं, तो ये भी हमारे कंपनी का बर्थडे है। तो इसे हर एक ब्रांच में मनाया जा रहा है, यहीं आज हैदराबाद में नहीं बल्कि हर एक ब्रांच में मनाया जा रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है सबको देख के। आप लोग इसी तरह से हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए और बहुत फाउंडेशन डे मनाना है, सालों साल मनाना है। और मैं सभी को एक बार फिर से धन्यवाद दूंगा। और खास करके मैं ये कभी नहीं बोलता, मैं हर एक स्पीच में मेरा ये रहता है, मेरा सिस्टर कितने बार बोलती भी है, लेकिन मैं इसलिए ये चीज़ बोलता हूँ कि आज जो भी हूँ उनके बदौलत हूँ। वो है हमारे कस्टमर जो हमारे पे भरोसा दे के अपने एडवांस में चेक दे के देते हैं कि आज हमारा लॉन्च भी नहीं होता है और वो एडवांस में हमें चेक देते हैं कि फलाना जगह आपका वेंचर आ रहा है, हमको एक ना एक प्लॉट लेना है। तो इतना भरोसा दिलाते हैं, उनके लिए मैं तहे दिल से पूरे कस्टमर को, जितने भी कस्टमर मैं सभी को धन्यवाद करूँगा। और एक चीज़ उनको बार बार बोलता हूँ, विश्वास दिलाऊंगा कि जो हमने कमिटमेंट करते हैं वो पूरा करके ही छोड़ेंगे। आप लोग निश्चिंत रहिए, सबका रजिस्ट्रेशन भी बराबर हो रहा है और ऐसे ही होगा। और पामको भी जैसे हमारा बहुत अच्छा गया, हमने लगभग अभी खाली 15 प्लॉट बेचा है। तो हमको लगता है इस 2 महीने में हम लोग उसको भी कंप्लीट करके नए हमारा जो है संगारेड्डी में और गौचीवली में 2 जगह पे नए पामकोप के भी जैसे और भी हमारे अपार्टमेंट बनेंगे, विलास बनेंगे। तो आप लोग तैयार रहिए, अपने टीम को बढ़ाइए और खूब सारा एंजॉय कीजिए। धन्यवाद। So that was wonderful speech and the main heart of the company. So here we have the AV with the sound. So it was wonderful song and wonderful photo as well. Anniversary day. So can you all give a round of applause to him? Gatinga chappatlendi andaru kalisi. Thank you sir. Very warm welcome to Tricolor. So once again a very warm welcome to the Tricolor company sir. Thank you, and the whole family is here and we are eager to see your performances.
And now is the time to call the main heart of the company, Private Limited. So, sir, as soon as you step in, as soon as you wake up, you can see the respect and you can see the life. You're welcome, sir. अच्छा एंकरिंग कर रही है ना? Thank you, thank you. सारे लोग अपने कुर्सी पे बैठ जाइए और कुछ बोलने की कोशिश करता हूँ, कुछ थोड़ा सा एंटरटेनमेंट लाने की कोशिश करता हूँ हमारे गेस्ट, खास करके हमारे इस्माइल भाई। शाम है इस महफिल के, सबकी निगाहें इधर नहीं उधर है। ऐसे भी चिल्ला के बोल सकता हूँ। मैं स्टार्ट करने से पहले हमारे बीच आए हुए कुछ गेस्ट हैं जिनको यहाँ पे 2 मिनट के लिए बुलाना चाहूँगा। हमारे डॉक्टर साहब सोमनाथ जी, प्लीज आइए। So we invite Dr. Somanath Garu to please come on to the stage. Can we all give a round of applause and invite him? Everyone, please come. So we would like to felicitate our guests. That was great and thank you. वो सब हमारे इस ट्राई कलर ग्रुप के, he is also a member from hospital, तो मैं चाहूँगा कि 2 शब्द इनके मुंह से भी सुन लें हम लोग। जरूर जरूर। थैंक यू फॉर द गिविंग मी अपॉर्चुनिटी। हॉस्पिटल स्टार्ट हुआ और इनका बहुत ही अधिक सहयोग था ट्राई कलर का, अभी भी है, कंटिन्यूस रहेगा। ठीक है, अभी भी इन्फेंट स्टेज में है, ठीक है, बट ये बढ़ेगा और मेरा पूरा विश्वास है कि अगर ट्राई कलर प्रॉपर्टीज और स्पेशली मिस्टर चंदन कुमार झा का सहयोग रहेगा तो इसको बढ़ना ही बढ़ना, विल ब्रिंग इट टू द नेक्स्ट स्टेज। वी प्रेजेंटली वी आर वर्किंग एज ए mini corporate hospital, but I want it to be the corporate hospital with all the teaching facilities. That is my vision. How far I will be successful, I don't know, but this is my vision that I want to make it with the quality service. That is very important in healthcare. Healthcare, everybody is there. India में हर गली नुक्कड़ पर होते हैं health care, लेकिन quality health care I want to make it. That is my motto. Thank you. Thank you. Dr. Zubai Garu onto the stage with a round of applause. Let us invite him. Welcome to Tricolor 12th Annual Day Celebration. Hello. And also Dr. Akram. So we invite Dr. Akram Garu onto the stage with a round of applause. Andra gandiga chappatlato వాళ్ళని వేదిక మీద ఆహ్వానిద్దాం. As well. So before I say anything else, I would like to congratulate the Tricolor team and the Tricolor family for the 12th Foundation Day. Happy birthday, Kittu. Happy birthday. And the only thing I wanted to say is our CMD, Mr. Chandan sir, has appointed a very qualified and trained emergency medicine team at their hospital, Tricolor Hospital, for 24/7 emergency services and 24/7 emergency queries for the entire Tricolor family. So we are always available for you, for your queries, for your emergency needs, 24/7 at the hospital. Thank you so very much. Thank you. पहली बार तो बहुत बहुत मुबारक मैडम चंदन सर बेटे की सालगिरह के लिए, और ट्राइकलर टीम को भी बहुत बहुत मुबारक। पहली बार आरती मैडम से ही मुलाकात हुई थी और ट्राइकलर का
हॉस्पिटल के लिए मुझे इनवाइट किया गया था कि एनएससीसी और क्रिटिकल केयर सर्विसेज टेक ओवर करें, मगर आप लोग का इतना प्यार चंदन सर के लिए देख के, कंपनी का स्पेशली हम लोग की भी कंपनी है, मगर जितना प्यार आप लोग चंदन सर के और ट्राइकलर करते हैं, लिटरली आई एम शॉक्ड। चंदन सर इज सो यंग, इतने डायनामिक है। आई थिंक एट हिज एज अचीवमेंट्स आप लोग यू कैन अचीव एवरीथिंग एंड होपफुली ट्राइकलर हॉस्पिटल्स भी वैसे ही अचीव करेगा एंड श्योरली विल बी विद दैट। So good afternoon everybody. I'm from Shine Medical Services. Myself and Dr. Zubair. I'm Dr. Akram. So on behalf of our company, congratulations to everybody, especially parents जो आपको देख के लगता है कि हाँ कैसे लीड करना है. Congratulations to you sir and सब फैमिली को congratulations. इंशाल्लाह आपने हमको मौका दिया है ट्राइकलर हॉस्पिटल को सर्विसेज देने के लिए. And it's been 40 days and we are on to that work. And sir, I'm expecting a lot from you. So hopefully we'll go ahead in future also for future endeavors, sir. Thank you so much. So thank you so much for all the doctors for supporting us. And once again, can you all... बोलने के बाद मेरा मौका आता है और जब मैं सोचता हूँ कि अब मैं शुरू करूँ, पता चलता है कि जो मैं बोलने वाला हूँ सब बोल चुके हैं, तो मुझे समझ में नहीं आया। तो फिर भी कुछ इधर उधर से लाता हूँ और बोलने की कोशिश करता हूँ, बट मैं थोड़ा सा बैक स्टेज झांक के देखना चाहूँगा। जितने भी लोग यहाँ पे आके कुछ बोल रहे थे मैनेजमेंट में, वो कहाँ रहता है एक्चुअली। मुझे लगा कि बैक स्टेज में बैठा हुआ कोई मैनेजमेंट है क्या, नहीं है ना। तो मैं तो यही सोचता हूँ कि जितने लोगों के हाथ में माइक गया या जो लोग यहाँ पे बैठे हैं वो भी मैनेजमेंट के पार्ट हैं, है ना। तो मैनेजमेंट जैसा कुछ ऑफिशियल ये वो नहीं होता है। सो वी ऑल आर अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट एंड हैप्पी बर्थडे किट्टू। सब लोग बोले, सबके दिल में आया, दिमाग में आया, तो लेकिन मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि घर पे फिर गाली ना पड़े, तो बर्थडे किट्टू। सो हैप्पी बर्थडे। बिजी है फोन में, चलेगा। और हैप्पी बर्थडे टू एवरीवन, एज रामकृष्ण अन्ना टोल्ड एवरीवन कि आज किसका बर्थडे है, मतलब हमारा, हम सबका, जितने भी लोग ट्राइकलर से जुड़े हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो रुकना, बोलूँगा जब तक, चला क्या पूछ रहा वहाँ से, ठीक है, चलो, इट्स ओके। सो यस, वेलकम यू एवरीवन, माय पेरेंट्स, फादर, मदर, सिस्टर और हमारे बच्चियाँ। दिस इज फैमिली राइट। हमारे बिग ब्रदर, भाभी जी, माय वाइफ। सीरियसली देवर बोला आप लोगों को, ध्यान रखना इस बात। तो देवर ही रहो, काफी है। कंपनी आवर बोलता है तो वाइफ में भी आवर बोल सकते हैं। और जितने भी गेस्ट आए हैं यहाँ पे, कुछ लोग बैंगलोर से आए हैं और एक नया पिलर हमारे साथ जुड़ा है, हमारे नरेंद्र राव साहब के। भाई एक बार है, नमस्ते कर दो। हम लोग बाद में आए हैं। आई एम वेरी मच श्योर कि अभी नरेंद्र राव जी हमारे कंपनी में एक लैंडलॉर्ड की तरह आए हैं, बट उनको ये पता नहीं कि मेरा बर्थडे कब है। 8 मार्च छोड़ो, 8 उससे एग्जिट ही नहीं है। सो कमिंग टाइम ही विल बी आल्सो बी ऑन अ स्टेज wearing an ID card and a blazer and representing something for our department. So I am very much sure. कुछ इधर उधर चल रहा है ना, तो मैं सोचा बंद कर दो। So हमारे देश में बहुत ज़्यादा इज्जत होता है और हम लोगों ने नारा भी लगाया है। हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी ने बोला था, क्या बोला था? जय जवान जय किसान। फिर एक नया टैगलाइन जुड़ा कुछ समय आने के बाद, और वो था जय विज्ञान, साइंस। एक सेट ऑफ पीपल है जो शायद जिसको हम लोग नजरअंदाज करते हैं, जिसको शायद
हम लोग देख नहीं पाते हैं, या इंडियन मेंटालिटी जो स्टार्टिंग से आई है उसमें वो लोग एक्चुअली गुप्त हो गए हैं, साइलेंट हो गए हैं। बट देश का सारा योगदान, या मैं यूं कहूं कि देश का 90% ऑफ जो कंट्रीब्यूशन है देश के निर्माण के लिए, हमारे भविष्य के लिए, हमारे प्रेजेंट के लिए, वो मेरे हिसाब से वो ठेला वाला जो केला बेचता है ना, वहां से लेके और जो टॉप मोस्ट एंटरप्रेन्योर है उनको ये क्रेडिट जाता है। आज हमारा देश, हमारा सिस्टम का डिपेंडेंसी मैक्सिमम जो है टैक्सेशन पे रुका हुआ है, और उस टैक्स का जो स्ट्रॉन्ग पेयर्स है, मैं समझता हूं कि हमारे देश के कोने कोने, गांव मोहल्ले, हर शहर, हर टाउन में बसे हुए कुछ बिजनेसमैन हैं, कुछ या बहुत सारे बिजनेसमैन हैं, जिनके कंट्रीब्यूशन से ये देश साइलेंटली, बिना किसी आवाज हल्ला किए हुए बहुत कुछ निर्माण किए जा रहा है, जो नजरअंदाज हो रहे हैं। कुछ समय पहले मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में एक वीडियो आया था, जो मैं चाहूंगा कि वो वीडियो आज जब मैं बोलूं तब आकर तो आप लोगों के लिए यहाँ पे प्ले करूं, और आप बिना साइलेंट किए हुए उस वीडियो, शायद 2 या 3 मिनट का होगा, ध्यान से देखिए। आपको एक मैसेज छुपा हुआ, मैंने नहीं बनाया, मुझे किसी ने ग्रुप पे भेजा था, उसको ध्यान से देखिए। एंड दिस वीडियो इज कंप्लीटली डेडिकेटेड फॉर एवरी एंटरप्रेन्योर, every marketing person. We are sitting here, they are a leader, they are the creator for many employment. So उस लेवल से देखिए, एनालाइज योरसेल्फ देयर कि आप भी उसमें से कोई एक हो। थैंक यू। लाइट्स ऑफ होगा कि जो वीडियो में दिखाया गया है वो कितना एक्चुअली सत्यता बयान है। सो इन जनरल लाइफ में हम लोग क्या सोचते हैं कि भाई बिजनेसमैन को देखने से कि अकाउंट बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो हो रहा होगा, बट वो उन्होंने भी बताया था कि जो अकाउंट खाते का जो बैंक बैलेंस है वो कुछ और हिसाब किताब बोलता है। तो दिस इज व्हाट ट्रूथ इज। बट बिजनेसमैन में बहुत बड़ी खासियत होती है कि वो कुछ भी हो जाए हिम्मत नहीं हारते हैं, और यही देश के सेना जिस तरह से सम्मानित होते हैं, मैं चाहूँगा कि अपने इस स्टेज से अपील करना चाहूँगा कि सारे बिजनेसमैन के लिए, वो चाहे वो मंडी पे केला ही क्यों ना बेचे, उसके लिए वो इज्जत आपके दिल में होना चाहिए। सो प्लीज नाउ कमिंग ऑन टू द टॉपिक, कि मैं पिछले 6 महीने से लगभग यही कोशिश कर रहा हूँ कि जितने भी अपने ब्रांचेस हैं, जितने भी अपने सिस्टर कंसर्न्स हैं, और जितने भी अपने कंपनीज हैं, ब्रांचेस, लीडर्स, ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अनाउंसमेंट है कि अपने आप के लिए आत्मनिर्भर बनो। तो आत्मनिर्भर हम लोगों को बनना है। लोग यहाँ पे आके बैठे हुए हैं, मैन पावर के बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, और हॉस्पिटल के भी हैं, तो हॉस्पिटल के भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं। इन सारे लोगों के साथ ट्राई कलर ग्रुप से मेरा यही अपील है कि अपने आप पे भरोसा कीजिए। आप जिस किसी भी डिपार्टमेंट को देख रहे हैं, जिस किसी भी पोजीशन को हैंडल कर रहे हैं, इसमें अपना बेहतर योगदान दीजिए। और नेक्स्ट वीडियो नहीं आ रहा, इतना गौर से कर सब लोग देख रहे हैं। आज की तैयारी में जितने भी लोग लगे हुए थे, उनका बहुत बड़ा योगदान था। आप जो सेटअप देख रहे हैं, ये पहला ऐसा मौका है जिसमें जो सो कॉल्ड आप लोग भी सपोर्टिंग स्टाफ है, नागभूषण मन्ना है हमारे हॉल के मेकर। सो इन सारे लोगों को मैं एक बार बहुत बड़ा धन्यवाद देता हूँ। और मैं आप सारे लोगों से पिछले कई मीटिंग से एक ही चीज़ का दरख्वास्त करता हूँ कि हमारे पास एक लीडरशिप का कॉन्सेप्ट अभी इस बीच में स्टार्ट हुआ है, एंटरप्रेन्योर लीडर। उसको बनने के लिए मैंने कुछ पॉइंट्स बताए थे।
कितने पॉइंट्स थे वो? तो वो 1 by 1 कोई एक पॉइंट्स बोल सकता है? नॉलेज, फर्स्ट इज द नॉलेज, नेक्स्ट कॉन्फिडेंस, ईगो, discipline. Yes, ego is the 8th point we have discussed. Pardon me? अरे बोल भाई जोर से. Personality. Personality comes under discipline. Passion is there. Attitude, sir. That matters a lot. And the best of best is the second point I have shared with everyone. मैं इस एग्जाम्पल को देने के लिए जब हमारा जो क्वार्टरली मीटिंग हुआ था तो मैंने बोला सब लोग एक बार नीचे झुक जाओ, तो सब लोग सोचे कि हम लोगों को पनिशमेंट मिल रहा है, नीचे झुको पैर छुओ अपना. तो एवरीवन थॉट कि मैं उसको पनिश कर रहा हूँ. हमारे क्वार्टरली मीटिंग के जितने भी लोग हैं वो जानते होंगे. बट वहाँ से एक छोटा सा चीज़ उभर के आया कि दिस इज सेकेंड पॉइंट, stretching for new ideas. So every time a businessman को, एक entrepreneur को चाहिए, और to become a leader you have to have that clarity of new ideas, not only creating but implementing. So don't be serious. मैं देख रहा हूँ कि पता नहीं क्यों हम लोग सीरियस होते जा रहे हैं. टेंशन हो रहा तो 10 पॉइंट बोलेंगे के? नहीं अभी 10 पॉइंट नहीं बोलूँगा. 8-10 घंटे ऐसे चले. तो उनको किसी ने पूछा कि आप इतने बार स्टेज पे जाते हैं, क्योंकि मैं भी यही कहीं ना कहीं करता हूँ, इसीलिए आप लोगों को बोल देता हूँ कि अब जब स्टेज पे जाते हैं तो सबसे पहला चीज आप क्या करते हैं? पहले ही हंस दिया. इसको तो बोल दिया. नहीं तो उन्होंने बोला मैं पहले अपना पैंट का जिप चेक करता हूँ, लगाया. सुनो सुनने में इट्स फनी, बट हम सारे लोग यही करते हैं. सीरियसली बोल रहा हूँ, मैं लिफ्ट में भी एक बार चेक कर लेता हूँ सब ठीक ठाक है. So, इतना फनी नहीं है, वी ऑल डू. और आप लोगों को पता याद होगा कि मैंने बैंगलोर के क्वार्टरली मीट में और कुछ बताया था आपको कि हमारी भाभी ने वो क्वेश्चन पूछ दिया, तो मेरा तो जवाब देना बनता है ना. तो उस जवाब के रूप में मैं पेश कर रहा हूँ कि जितने भी ये जो एनर्जी कुछ भी नहीं होता, वही सेम एनर्जी के साथ हम लोग हैं. लेकिन ये जो नए आइडियाज जो आते हैं ना, वो बाथरूम में आते हैं. आप इसीलिए अगर कोई डोर मारे भी तो खोलो मत. मैं नया आइडिया निकाल रहा हूँ. सो क्लैरिटी ऑफ माइंड रखिए. जितना बालकृष्ण क्या सुनिए ध्यान दीजिए कि अगर किसी को मोशंस हो जाए, ये मत सोचिए कि एक ही आइडिया आएगा, वहां से 20-25 आ सकते हैं. भाई थोड़ा बहुत आपका काम कर रहा हूं, आप बाकी का संभाल लो. हंसने के बहुत सारे बहाने चाहिए. और जैसे कि आपके बेटर हाफ बोले थे ना आपने, बीटर हाफ था वो. उन्होंने अपने स्पीच में बोला था कि 1 साल पहले कुछ डलवल हो गया था. तो प्रिसाइजली मैं डिप्रेशन में था और उस समय की बात कर रही थी. तो बखूबी आप लोगों ने उस 6 महीने को बहुत अच्छे से संभाला. नाउ दैट आई एम बैक, सो आई एम बैक. और मैं आपको नए प्रोजेक्ट्स हर साल हर महीने देने की कोशिश करूंगा. और सबसे बड़ी बात बोलूँगा कि हम लोग ग्लोबली एक्सपैंड हो रहे हैं. आज हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है कि हम लोग इस स्टेज से दुबई के लिए बहुत सारा प्रशंसा किए, बहुत सारा पता नहीं ऊंचा बहुत कुछ बोले. लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो अभी भी दुबई ऑफिस के मेकिंग में लगे हुए हैं. मैं कोशिश करता हूँ कि एट द एंड ऑफ दिस मीटिंग एटलीस्ट उनका एक लाइव वो जो क्या बोलते हैं कैमरा यहाँ पे ऑन करने के लिए, so that you will get to know what our Dubai office is doing. वो कुछ लीडर्स ऐसे हैं
जो शायद नाम के लिए काम ही नहीं करते, जो सिर्फ काम के लिए काम करते हैं, उनको किसी चीज से मतलब नहीं है। अवार्ड मिले, फेस कौन होगा, मेरे को उतना ज्यादा वहां पे स्टेज पे बुलाया जाएगा नहीं जाएगा, ऐसा कोई नहीं है। लेकिन दे मेक श्योर दैट एवरीथिंग इज परफेक्ट। और उन्हीं लोगों ने ट्राई कलर को एक्चुअली चलाने की जिम्मेदारी उठाई है। मुझे तो बोलते हैं आ जाओ स्टेज पे कुछ बोल दो, तो मैं अपना हंसी मजाक करने लगता हूँ, बट वो चेहरा नहीं है जो यहाँ पे आपको दिख रहा है। वो कुछ इसी भीड़ में बहुत सारे लोग में से कुछ लोग बैठे हुए हैं जो सीरियसली कंपनी को चलाने की जिम्मेदारी लिए है, और जिनकी वजह से कंपनी आज चल रही है, इस मुकाम पे है। तो हमारा आप लोग सारे लोगों से वायदा भी था कि हम लोगों ने 50% पता है ना, 50% मेल का होना चाहिए, 50% फीमेल। मैं अभी जैसे ही यहाँ से वहाँ तक गया तो मुझे लगा कि 30-35% फीमेल के पास हम लोग अभी तक पहुँचे हैं, बट ये रीच हम लोगों को बढ़ा के जो है 1 रो मेल एंड 1 रो फीमेल का बहुत ही जल्दी क्रिएट करके देना है। तो स्टेज पे आके बहुत बड़ी बातें करना, वुमेन एम्पावरमेंट, दिस दैट, आप वुमेन्स डे पे ऐसे बहुत सारे स्पीच सुनोगे, सिर्फ बोलने से नहीं होगा। सोसाइटी में किसी न किसी को ये जिम्मेदारी लेनी है। सो हम लोगों को ट्राई कलर के लिए ये जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है। मैं HR, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो प्रॉपर्टीज़ हो, या जो भी मैन पावर हो, स्कूल हो, सारे लोगों से यही अपील करता हूँ कि आप ये 50-50% के कोऑर्डिनेशन को बना के रखिए, क्योंकि हमारे सोसाइटी को अगर डेवलप होना है तो वो मैंने कुछ दिन पहले एक शो देखा था, और वो देखते ही रहता हूँ वीकली 6 दिन। वो क्या है जी, अनुपमा। तो उसमें मैंने एक छोटा सा डायलॉग सुना था। उसने बोला था कि अगर हम लोगों को अपने वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा देना है तो जितने मेल्स हैं सिर्फ उनके रास्ते से हट जाना है, उसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप हट जाओगे और स्पेस दे दोगे उनको कुछ करने के लिए, तो वो आपसे ज्यादा मिराकल करके दिखा सकते हैं। तो एक ताली इन सारे जो ग्रुप ऑफ लेडीज हैं उनके नाम होनी चाहिए, और वो सबसे ज्यादा जोर से होनी चाहिए। कुछ लोग जो ताली नहीं बजा रहे हैं, मैं सारे लोगों से बोलता हूँ आप अपने वुमेन के साथ वुमेन एम्पावरमेंट के लिए ताली बजा दीजिए आप भी। और मन से उन लोगों ने ताली बजा रहा है। क्या बोले? मन से ताली बजा रहा हूँ। मन से नहीं बजता ताली, हाथ से बजता, जो दिखता सबको। एक्चुअली हो क्या गया है कि अपने ट्राई कलर में सबको कंपलसरी कर दिया गया है, ब्लेजर पहनो नहीं तो 10,000 फाइन दो। अब आदमी क्या करे, मेरे सामने बॉटल रखा था, मैं ऐसे पैक था कि मैं बोला बॉटल निकाल के दो मेरे को। सो वो हो जाता है, लेकिन ठीक है, आप थोड़ा सा कंफर्ट स्ट्रेच कर लीजिए खुद को। और मीटिंग में आगे बढ़ते हुए हम लोगों ने सुना कि हम लोग पटना में या हैदराबाद में या बहुत सारे ऐसे जगह पे, बैंगलोर में मैंने सुना कि थोड़े से वर्ड्स होते हैं ना जो सोसाइटी को डिग्रेड कर देता है, और वो वर्ड है वो चैरिटी का। जो जैसे हम लोग चैरिटी नाम लेते हैं तो हम ये महसूस करते हैं कि चैरिटी का मतलब कुछ ऐसा हो सकता है कि जो किसी दीन या गरीब या व्हाटएवर, तो बेदोलू बोलते हैं ना, जो गरीब होते हैं, उसके लिए कुछ ऐसे कर दिया। बट मेरा इस पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डिफरेंट है, और माय ओपिनियन ऑफ कोर्स कि मैं आप सारे लोगों से यही बोलना चाहता हूँ कि मेरे नज़र में वो चैरिटी का नाम नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो डिग्रेड कर रहा है। वो एक समाज, एक सुरक्षित, स्वच्छ, सफल, उज्जवल और डेवलप्ड समाज के लिए हम लोग जो कंट्रीब्यूशन करते हैं, तो हम लोग चैरिटी नाम शायद यूज़ नहीं करना चाहिए यहाँ पे ट्राई कलर में। और हम लोग यूज़ करते हैं कि हम लोग जो आने वाले समाज के लिए अगर कुछ कंट्रीब्यूशन हम लोग कर पाएंगे, तो बहुत सारे लोगों के लिए मैंने कुछ वर्ड सेलेक्ट किया है। और मैं बोलना चाहूँगा कि यज्ञ जो होते हैं ना, वो 4 प्रकार के होते हैं, और एक उसमें से एक यज्ञ होता है जो द्रव्य यज्ञ होता है। द्रव्य मतलब आप सारे लोग जानते होंगे कि कोई धन दौलत आप इधर उधर पिछड़े लोगों में या जिस किसी को भी दान करते हैं। दूसरा श्रम योग होता है, श्रम यज्ञ होता है, जो आप मेहनत करते हो किसी भी चीज़ के लिए, आप बिना एक्सपेक्ट किए अगर किसी भी जगह आप सिर्फ शरीर से जाके मेहनत कर दिए
तो वो भी एक यज्ञ का रूप है। तीसरा जो यज्ञ होता है वो होता है जो हवन कुंड में हम लोग ओम स्वाहा ये वो दिस दैट करते हैं। ये सारे यज्ञ महत्वपूर्ण है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यज्ञ है वो चौथा यज्ञ जिसका नाम है ज्ञान यज्ञ, जो नॉलेज का एक्यूमुलेशन है। क्योंकि नॉलेज ही एक वस्तु है जो आपको दीवार के उस पार भी दिखा सकती है। दुनिया यहां से आगे बढ़ने के बाद हमारे मून आता है, मार्स आता है, ये सारे जगह पे ले जाने के लिए सिर्फ नॉलेज ही था। सो मेरे फ्रेंड्स, मैं यही चीज बोलना चाहूंगा कि आप बहुत सारे लोग स्टेज पे आके स्टेज फियर, चंदन साहब का डर, ऐसा फालतू की बात है, ऐसा कुछ नहीं होता, नहीं होता है। लेकिन ये चीज मैं जरूर बोलूंगा कि जितना आपके पास नॉलेज रहेगा उतना देर आप स्टेज पे बोलते रहोगे और उतना ही देर लोग आपको सुनते रहेगा। इसीलिए अगर कुछ करना है तो अपने अपने नॉलेज को बढ़ा के रखिए, संभाल के रखिए, समझा के रखिए, संजोग के रखिए। और नॉलेज एक ऐसा चीज है जो बहते रहना चाहिए, नदी की तरह, पोखर की तरह, लेक की तरह, कहीं जाके स्टोर नहीं होना चाहिए। दूसरा, बहुत सारे लोग अपने भगवान, अल्लाह, जीसस सबको जाके प्रे करते हैं और बोलते हैं कि हे भगवान मुझे किसी भी तरह का प्रॉब्लम मत दो। तुम अगर अगली बार ये चीज आप कर रहे हो तो थोड़ा बहुत ट्विस्ट कर लो, क्योंकि प्रॉब्लम नहीं देने का मतलब मौत ही है। जब आपको जिंदा रहना है तो ऊपर वाले से सिर्फ यही प्रे करो कि भाई प्रॉब्लम दो मेरे को, उसके लिए इतनी ताकत दो कि मैं उसको फेस कर सकूं। सो क्या मांगेंगे आप लोग? प्रॉब्लम दो, नहीं बुरा मांग, प्रॉब्लम दो, लेकिन उसको बर्दाश्त करने का, उसको झेलने का हिम्मत दो, ये मांगेंगे। और 4-5 दिन पहले आरती मैडम ने, डायरेक्टर ऑफ हॉस्पिटल ने मुझे वाक्य बोला था, मैं चाहूंगा, मैं सोचा कि वो बोल देगी, मैं क्या बोलूंगा, लेकिन वो नहीं बोली, तो मैं बोल देता हूँ कि जो बहता हुआ पानी होता है ना, जो बहता हुआ पानी होता है उसमें वही मछली तैर के जाते हैं जो एक्चुअली मरे हुए होते हैं। समझ रहे हो ना? जो पानी को चीर के उल्टे उसमें जाता है वो एक्चुअली जिंदा मछली होता है। तो आप सारे लोगों को ध्यान रखना है कि आपको पानी को चीरना है हर हमेशा। अपने आप में इतना जोश, ताकत, मोटिवेशन, बहुत सारे चीज इतना कस के बांध देना है कि हमारे जो लक्ष्य है उसके बीच में कुछ ना है। बहुत लोग सक्सेस के लिए बहुत कुछ करते हैं, पर मैं दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि सक्सेस, सफलता तो नारायण के हाथ में है ना, अपने हाथ में तो है नहीं। हमारे हाथ में क्या है? कर्म। सिर्फ कर्म करो, फल की अपेक्षा मत करो। वो तो भाभी ने बोल दिया, मार्केट में भी मिलेगी। तो जब भी फल लेने की वो अपेक्षा हो सक्सेस होने का, तो सक्सेस होने के लिए आपको कर्म ही करना पड़ेगा और फल लेने के लिए मार्केट चलेगा। यही मेरा आपसे विनती है। और यहाँ बैठे जितने भी सारे लोग हैं स्पीच में ध्यान रखे हैं कि सारे बिजनेसमैन, सारे मार्केटिंग, इन लोगों का प्रेस तो बहुत ज़्यादा हुआ कि, लेकिन मैं आप सारे लोगों को बता दूं कि ऑपरेशंस बिना मार्केटिंग शायद उतना ज़्यादा एडजस्ट नहीं कर पाएगा। कि पूरे शरीर में ऐसा कौन सा अंग है जो इम्पोर्टेंट नहीं है। डॉक्टर लोग इनको भली भांति ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे, लेकिन हम लोग आम भाषा में इसको क्या कहेंगे, कोई भी ऑर्गन बॉडी का अगर काम नहीं करेगा तो आदमी किस काम का रह जाएगा। इसीलिए हमारे ट्राई कलर को बनाने में कुछ ऑपरेशन स्टाफ्स जो बैक स्टेज में है, जो इधर उधर पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, उन्हीं की वजह से हम लोग एक सफल, एक डिसिप्लिन वे में बिजनेस को लेके आगे जा रहे हैं। जब किसी कस्टमर को कोई भी दिक्कत आती है तो मार्केटिंग वाले ऑपरेशंस की तरफ हाथ दिखा देते हैं। हॉस्पिटल में भी, मैन पावर में भी आप देखते होंगे, वो ऑपरेशन से बात कर लो, मेरा काम था बेचना, मैंने बेच दिया। सो ऐसा ही होता है। सो इन लोगों के लिए भी एक बार जोर से ताली बजनी चाहिए।
हमारा जो बेंगलोर का टीम है और जो मीडिया का टीम जो मीडिया देख रहा है और उन सारे लोगों के एक नए डिज़ाइन के हिसाब से उन्होंने एक QR कोड लॉन्च किया है एंड दैट इज़ अ फीडबैक QR कोड। प्लीज स्क्रीन पे एक बार जब तक खोल रहा है तब तक मैं उसके बारे में कुछ बता देता हूँ कि ये QR कोड नॉट ओनली फॉर मार्केटिंग एंड कस्टमर, दिस इज फॉर एवरी स्टाफ। आपको वो QR कोड आने वाले इस सप्ताह के अंदर अपने प्रॉपर्टीज हो या कोई भी सिस्टर कंसर्न ग्रुप्स हो, यही QR कोड है। इसमें आपको ये दिस इज अ फीडबैक फॉर्म टू द कंपनी और ये साइलेंटली आपको क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा, अगर ये स्कैन कर लोगे आप तो आपको रियलिटी में समझ में आ जाएगा और इस पे आप लिख के उनको भेज सकते हैं। दिस विल डायरेक्टली रीच टू द सेट ऑफ टीम जो आपकी सहायता करेंगे आपके दिए हुए फीडबैक सुझाव को जल्दी से जल्दी, अगर कोई कठिनाई है तो दूर करने के लिए, और अगर कुछ अप्रिशिएशन है, कुछ सजेशन है तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। हमारे बाकर भाई 1-2 मिनट दे दिए तो मैं और बोल लेता हूँ, 1-2 मिनट। और एक साइलेंट नेम है जो कंपनी के हर जगह दिखते हैं, वो है हमारे शर्मा जी, चीफ एडिटर। हाय बोल दो। थैंक यू। तो शर्मा जी इज एडिटर फॉर आवर क्वार्टरली मैगजीन। मेरा आप सारे लोगों से रिक्वेस्ट है, अपील है कि अपने अपने कंटेंट, आपके सोच सुझाव शर्मा जी के साथ शेयर कीजिए। उनको बताइए कि आप अगले मैगजीन में क्या लाना चाहते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं अपनी टीम को, क्योंकि ये मैगजीन जो है ये ग्लोबल है। बहुत सारे लोग ग्लोबली हमारे इस मैगजीन को पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, सीख रहे हैं। पिछले मैगजीन में भी, पिछला क्वार्टर का जो मैगजीन था उसमें भी हम लोगों ने जो लिस्ट किया था उसमें मेजरमेंट्स ऑफ लैंड, इंडिया के हर कोने में किस तरह का मेजरमेंट होता था, इस टॉपिक को कवर किया था। एंड आई एम श्योर कमिंग फ्यूचर में बहुत सारे और टॉपिक्स को हम लोग इन्वॉल्व करेंगे। सो वी नीड योर कंटिन्यूस सपोर्ट। जो हमारा नया सॉफ्टवेयर आ रहा है, जो ऐप आ रहा है, उसको डेवलप करने के लिए मरानी ग्रुप, उनके फाउंडर और हमारे तरफ से कुछ स्टाफ जो लॉन्च टीम के मेंबर हैं, उनको मैं काफ़ी दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। स्पेशली प्रमोद एंड राजेश, जो जहाँ भी है एक बार हाथ दिखा दीजिए उसको, जस्ट हाई बाय कर दीजिए, पीपल विल वॉच यू। आप लोग वो बैकबोन है कंपनी के अभी आने वाले समय में, कि जो कंपनी पेपरलेस होने जा रही है। जो सारे बुकिंग ये वो रिसिप्ट हम लोग आजकल मैनुअल मोड में करते हैं, वो सारे चीज़ आने वाले टाइम में इन दोनों के मदद और मेहनत से हम लोग कम्प्लीटली डिजिटलाइज हो जाएंगे। और मैं चाहूँगा कि जितने भी हमारे सिस्टर कंसर्न्स हैं वो सारे डिजिटल हो जाएं, ताकि जो पेपर वर्क पेपरलेस हम लोग जल्दी से ये सफलता को अचीव करें। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आपके एंटरटेनमेंट के बीच में अभी कुछ नहीं है, सिर्फ मैं ही खड़ा हूँ। सो मैं यहाँ से निकल जाऊँगा, आपका एंटरटेनमेंट चालू। और बिफोर वी स्टार्ट द एंटरटेनमेंट, मैं यहाँ के ये जो अरेंजमेंट के गेस्ट, इन सारे लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि पहले लंच कर लेते हैं हम लोग। लंच रेडी? ओके, लंच भी रेडी है, लेकिन हमारी मैडम को 2 मिनट का वक्त चाहिए। बट थैंक यू एवरीवन, थैंक यू टीम, थैंक यू ट्राइकलर ग्रुप, थैंक यू ट्राइकलर प्रॉपर्टीज। 2010 से जो शुरुआत हुई है 2022 में है, हम लोग पता नहीं और एंडलेस कितने सारे फाउंडेशन डे देखते रहेंगे, सेलिब्रेट करते रहेंगे। और एक लास्ट घोषणा है, ये गैदरिंग 200-250 का आज हम यहाँ पे देख रहे हैं। आप सारे लोगों को पता होगा कि इस बार का हमारा एनुअल मीट मई में जो हर बार होता है, वो इस बार मुंबई में रखा गया है।
मेरा सारे लोगों से अपील भी है कि अपने अपने पासपोर्ट्स बना लीजिए कि 2024 का जो है वो नेपाल में नहीं होगा, वो जरूर दुबई में होगा। थैंक यू। So that was wonderful and fantastic speech and very inspirational. So, all right, and we have a special